Good evening, everyone. So, Good evening, ma'am. good evening. Pooja, are you here? Okay. Bumpy. So, in our last class, we are going through what? Anybody remember? What is called communication? Business communication? Do you remember what I taught? What? No, not like this. I told you something. I have given you some hints. So, based on those hints, you have to tell me. What was the term? Yes, what was the term? Hmm? No, I have given you some hints, isn't it? Communication. So, what was it? Eat what? I have given you, na? What it was? Do you remember? You did not write? Yes, have you written? See, where is your sincerity? Huh? No, where is your sincerity? These things for yours only I am coming to your class to teach you. But you are not at all sincere. I have taught the last batches. There I got the sincerity and they have done the result also nicely. They have given the result nice. ऐसा कैसे होगा? सिंसियरिटी नहीं है तुम लोग का. मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लिखते हो नहीं हो. हमेशा बोलना पड़ता है. एंड यू आर नॉट फॉलोइंग द क्लास एट ऑल. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. These things I don't like. If you want to attend my class, you have to be sincere. Otherwise, I will stop teaching. मुझे पढ़ाने का यही चला गया. ऐसा होने से मुझे अच्छा नहीं लगता है. So there are types of communication. Types of communication. First one is formal, isn't it? Formal. Second one is informal. Third one is what? Verbal. Okay. ठीक है. Fourth one is non-verbal. Okay. Fifth one, but informal, formal, verbal, non-verbal, and any other? Written. Okay? ठीक है?
You just see what I am going to teach you. Formal means official, okay? ठीक है? Official communication, okay? Where you are communicating with your boss, with your colleagues in a formal way. Suppose in a meeting, suppose while presenting any thing, any document, means which you are communicating in office in an official way. That is called formal, okay? And there you have to maintain the secrecy also, okay? You cannot be informal with everyone, okay? You cannot be social with anyone, fine? Then informal. Informal कौन है? जैसे आपका social communication, okay? ठीक है? With your friends, etc. ठीक है? Informal. Verbal means जो बोल के. Okay, now here you see. Verbal communication means you are communicating with your spoken words, okay? Communicating with spoken words, ठीक है? Okay, fine. Now non-verbal में आपका types है बहुत. अब उसके पहले आपको जाना है कुछ informal में. इनफॉर्मल में आपका क्या है? फर्स्ट, ये इनफॉर्मल में आपका क्या है? फर्स्ट, सिंगल स्ट्रैंड. सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, ठीक है? फर्स्ट क्या है? सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन और सिंगल स्ट्रैंड चेन, ठीक है? सो नाउ हियर व्हाट हैपन, इसमें क्या होता है? इसमें आपका जैसे क्या बोलूं, जैसे आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू बी. मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मैंने तुमको दिया, फिर तुम्हारे पास से इंफॉर्मेशन तुमने सी को दिया, फिर सी से डी, ऐसा सिंगल एक चेन फॉर्म होता है, तो उसको बोला जाता है क्या? सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, ठीक है? अब सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन को और एक चीज भी क्या बोला जाता है? लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है? द कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन tells something to another who again says something to some other person and the process goes on. जैसे मैंने बताया ना कि मैंने एक इंफॉर्मेशन तुम्हें पास किया, तुमसे वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को तुमने पास किया, ऐसे करके वो चलते रहेगा, कंटिन्यूएशन होगा. सिंगल स्ट्रैंड, एक ही आदमी के पास जा रहा है, वो 2-3 आदमी के पास नहीं जा रहा है. A to B, B to C, C to D, like that. Okay, fine. This is called single strand communication. ठीक है? Now second one is cluster chain. B1 is cluster chain. ठीक है? अब क्लस्टर चेन कैसे हुआ? क्लस्टर चेन कैसे होगा? देखो, सपोज जैसे क्लस्टर चेन ए है, ठीक है? ए कुछ फ्रेंड्स को लिया, बी, सी और डी, 3 को बताया, ठीक है? ये तीनों को ए ने बताया, ठीक है? फिर बी से ये इंफॉर्मेशन फिर ऐसे तीनों को गया, ई एफ जी. समझ में आया? समझ में आया इसका कैसे हुआ? ये एक क्लस्टर फॉर्म होता है, ठीक है? मैंने जैसे तुम्हें चूज किया, तीनों दो फ्रेंड्स को सपोज चूज किया, ए हैज चूजन बी और सी, फिर बी के वहां से फिर और तीनों, ऐसे करके क्लस्टर फॉर्म होता है. तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर चेन कम्युनिकेशन, ठीक है? The communication in which one person tells something to some of its most trusted people. ठीक है? जैसे तुम्हारा बेस्ट 3 फ्रेंड है और तुमने वो तीनों को ही ये इंफॉर्मेशन पास किया, उन तीनों के में से
एक ने क्या किया, दूसरे और कोई दोनों को पास किया, उसका कोई ट्रस्टेड फ्रेंड है, ठीक है, एंड देन दे टेल देम टू देयर ट्रस्टवर्थी फ्रेंड्स एंड द कम्युनिकेशन कंटिन्यूज. ओके, समझ में आ गया? देन थर्ड वन क्या है? प्रोबेबिलिटी चेन. प्रोबेबिलिटी चेन. ओके, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चेन. अब ये प्रोबेबिलिटी चेन क्या हुआ? द कम्युनिकेशन हैपन्स व्हेन ए पर्सन रैंडमली चूजेस सम पर्सन्स टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ लिटिल इंटरेस्ट बट नॉट इंपॉर्टेंट. जैसे ए हुआ, ए ने किसी सी को चूज किया, ई को चूज किया, एफ को चूज किया, ऐसे करके कोई रैंडमली कोई पर्सन को चूज कर लिया, चूज करके वो इंफॉर्मेशन उनको पास करता है, फिर उन्होंने फिर रैंडमली ऐसा करके. समझ में आया? तो मतलब उसका कोई ये नहीं, ऐसे ही जैसे हल्का सा, वो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा घटना उसको उसके साथ डिस्कस करना है. जैसे कोई शादी में गए, तुम कोई शादी में गए, वहां पे जाके रैंडमली किसी आदमी के साथ बात कर लिया, ये ऐसा ही जस्ट एक पास ऑन इंफॉर्मेशन, जस्ट एक ऐसे हाई हेलो का टाइप के, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी चेन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज गॉसिप चेन. गॉसिप चेन, यू नो अबाउट द गॉसिप. तुमने बैठ लिया सराउंडिंग में भी और थोड़ा आदमी बैठ लिया, जैसे इनफॉर्मली तुमने बात किया, एकदम हाय हेलो तुम्हारे कॉलिग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दैट इज कॉल्ड गॉसिप. समझ में आया? उसमें कोई सीक्रेसी नहीं मेंटेन करना है, ठीक है. The communication starts when a person tells something to a group of people and then they pass on the information to some more people, and in this way the information is passed on to everyone. ठीक है? This is called gossip. समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे देखो एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में, और एक है अपवर्ड, डाउनवर्ड, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, रुको. अच्छा, ये बाद में मैं दूंगा, तभी अभी सुनो. नॉन वर्बल क्या हुआ? वर्बल हो गया, अब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, अब नॉन वर्बल. ठीक है, ओके. Now, here you see, next one is non-verbal communication. Non-verbal, ये आता है, ठीक है, जो मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ एग्जाम पर्पस से पढ़ा रही हूँ. So these things comes in the exam. अभी जो पहले जो मैंने पढ़ाया, now what I am teaching, these things will definitely it will come in the exam. Okay, non-verbal communication. Now here you see, first one is chronemics. What is chronemics? Chronemics मतलब the use of time in communication is called chronemics. जैसे आपका punctuality हुआ,
स्पीड ऑफ स्पीच हुआ, दैट इज कॉल्ड क्रोनेमिक्स. ओके, समझा? यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन. ठीक है, एग्जाम्पल punctuality, then speed of speech, ठीक है? All these are cronemics. These things comes in the exam. Okay, please keep it in your mind. Number two is vocalics or paralanguage. Okay, vocalics or paralanguage. A vocalics or paralanguage, the word itself speaks the answer. Vocalics क्या मतलब? हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्पीच. वोकल मतलब समझ में आया ना? वोकल, तुम्हारा ये वोकल है ना, तो तुम्हारा स्पीच का मतलब तुम जो दे रहे हो वो वॉल्यूम कितना जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ना, पिच हाई लो हो रहा है, वो कितना. ठीक है, द वॉल्यूम, टोन ऑफ वॉइस. ठीक है, वॉल्यूम और टोन ऑफ वॉइस. ठीक है, फाइन. Number 3, haptics. Haptics ये याद रखना. ठीक है, haptics. What is called haptics? जैसे मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, मतलब एक टच करके मैं कभी कभी बात करते हैं या नहीं, जैसे मतलब ऐसे जैसे सांत्वना, कंसोल कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड haptics. ओके, यूज ऑफ टच. ठीक है, is called haptics. Fine. Now next one, kinesics. What is called kinesics? The word itself speaks the answer. क्या है kinesics? मतलब kinesics, kinetic मतलब क्या है? बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, एक पर्सन का बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाते हो कि वो क्या बोलना चाहता है आपको. ठीक है, क्या आपको क्या वो खराब पा रहा है या आपको अच्छा पा रहा है, ये उसका आप बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाओगे. दैट द पर्सन इज एंग्री और ही इज सैड और ही इज हैप्पी, और व्हाट ही वांट्स टू कन्वे और व्हाट ही वांट्स टू से. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ऑफ ए पर्सन. ठीक है, now next, number 5. Number 5 is proxemics. 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 Proxemics मतलब, प्रोएक्सिमिक्स का मतलब आप जब बात कर रहे हो ना, तो वो आपके साथ जब बात कर रहा है वो कैसे, उसका डिस्टेंस कहाँ तक वो मेंटेन कर रहा है. वो एकदम आपके ऊपर घिर के बात कर रहा है ना, एक डिस्टेंस, पार्टिकुलर एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है. दैट वन इज कॉल्ड proxemics. So while you communicating with a person, what distance you are maintaining, how much you are maintaining, that is also called proxemics. Okay, that is a way of communication. Okay, distance maintained by a person while communicating. ठीक है,
ओके समझ में आया ये? नाउ नेक्स्ट इज आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स. Now what is called artifacts? Artifacts means the study of the appearance of a person. जो तुम अभी मुझे मेरा appearance देख के तुमको समझना पड़ेगा कि ये आदमी क्या बोलना चाहता है. जैसे मैंने एक बोला बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज कौन सा है? काइनेसिक्स. ठीक है, वो उसका काइनेसिक्स बॉडी लैंग्वेज. और आपका अपीयरेंस, आपका जो फेस है ना, वो फेस से पता चलना है कि वो दुखी है या क्या बोलना चाहता है, सैड है, और व्हाट ही वांट्स टू से, व्हाट ही वांट्स टू कम्युनिकेट. ओके, द स्टडी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन. ठीक है, फाइन. यूज ऑफ टाइम, पंक्चुअलिटी. जैसे वो टाइमली आ रहा है या नहीं आ रहा है. वो जैसे तुमने उसको ऑफिस में बुलाया, तुम्हारे ऑफिस में, तुम जैसे ऑफिस में बॉस हो और तुम्हारा जो कॉलिग्स आ रहा है उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे 7:30 ही हैज़ टू और शी हैज़ टू रीच. तो अगर वो पंक्चुअल है तो वो 7:30 ही विल रीच. इफ ही इज नॉट पंक्चुअल देन ही विल बी लेट. समझ में आया? दीज स्पीड ऑफ स्पीच. स्पीड ऑफ स्पीच वो जो एक जैसे उसका जो एक स्पीच कभी मतलब दे रहा है, वो कितना स्पीड से वो दे रहा है, मतलब फटाफट दे बोल रहा है या कैसे, मतलब दैट इज कॉल्ड. ओके, समझ में आया? जल्दी जल्दी बोल रहा है या उसका स्पीड कैसा है. जैसे एक बात, अभी मैं तुम्हें टीचिंग कर रही हूँ, मैं अगर जल्दी 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 पढ़ाऊंगी, विल यू अंडरस्टैंड? नो. तो मुझे एक स्पीड एक मेंटेन करना है. I have to maintain a speed while teaching you, isn't it? So that is called speed of speech. Okay? जैसे मेरा वॉइस का एक स्पीड होता है, मेरा एक बोलने का ढंग है, मेरा जैसे दिस वन वोकेलिक्स और पैरा लैंग्वेज, वो है वॉल्यूम और टोन. जैसे मैं करके एकदम ज़्यादा वॉल्यूम पढ़ाऊंगी तो तुम लोग बोले अरे ये मैम क्या पढ़ा रही है, ऐसा होगा. तो मेरा भी एक वॉल्यूम एक टोन मेंटेन करना पड़ेगा, है ना. सो दिस इज कॉल्ड वोकेलिक्स. हैप्टिक्स, यूज ऑफ टच. जैसे मैंने बोला ठीक है लिखो लिखो, just with the touch you will understand, yes ma'am is consoling us, ma'am is taking care of us. Okay, then kinesics, body language of a person. body language, the ma'am आज angry हो गया ना, मतलब मैम आया अच्छा से मैम प्रेजेंटेशन दे रहा है, so that is called body language. You have to understand the body language, what ma'am wants to say. Okay, how ma'am is treating, मैम का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मैम जो बैठते हैं कैसे, मैम उठते हैं कैसे, मैम का रहन सहन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मैम कैसे बोलते हैं. ठीक है. प्रोक्सिमिक्स, डिस्टेंस मेंटेन. while I am teaching you, while I am communicating with you, so while communicating what distance, how much distance I am maintaining. मैं तुम्हारे पास कैसे ऐसे बोल रही हूँ, या मैं ज़्यादा दूर से बोल रही हूँ, या एक गैप, एक डिस्टेंस, मतलब अप्रोक्सीमेट, एक मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ. ठीक है. Artifact, study of the appearance of a person. Okay, understood this much? Now sign language you will understand. sign language जैसे visual sign हो गया और आपका audio sign हो गया. visual sign जैसे ट्रैफिक रूल का, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का जो साइन देते हैं, जैसे आपका आप जाते हो ना रेड लाइट, ये सब होता है ना, दोज थिंग्स विजुअल साइंस. ठीक है. फिर आपका ऑडियो साइंस, जैसे हॉर्न देते हैं, गाड़ी का हॉर्न देते हैं. सो आपका जो अब किसी स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ पे बेल रिंग होता है. सो दोज आर ऑडियो साइंस. ओके. यानी तो हॉस्पिटल का जैसे एम्बुलेंस आ रहा है, एक आप समझ जाते हो कि ओ नो इट्स मतलब एम्बुलेंस इज कमिंग, सीरियस पेशेंट आ रहा है, 108 गाड़ी का, है ना. दीज आर कॉल्ड ऑडियो साइंस. ओके, फाइन.
अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ, मॉडर्न मेथड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये मॉडर्न मेथड है. जिंगल, one is called jingle. A jingle is a short piece of music with one or more hooks and meanings that promote a product or service being sold, usually through the use of one or more advertising slogans. Jingles are utilized by ad buyers in radio and television ads. देखते हो ना म्यूजिक जो देता है, that ऑडियो में बा टेलीविजन में कुछ भी एडवर्टाइज के साथ, जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है. जैसे मोबाइल का बोलते हैं ना, नोकिया का होता है ना ऐसा, तो वही. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैकडोनल्ड जिंगल्स, आई एम लविंग इट, ऐसा होता है ना, इस तरह से. फिर म्यूजिक, म्यूजिक तो यू नो अबाउट दैट. म्यूजिक इज एन एक्सीलेंट एंड पावरफुल मीडियम फॉर कन्वेइंग मैसेज, इंफॉर्मेशन. म्यूजिक के थ्रू से आपको इंफॉर्मेशन पास हो जाए कि वो चीज़ सैड होगा या हैप्पी होगा या फनी होगा, थ्रू म्यूजिक ओनली. ठीक है. फिर कार्टून, a cartoon can express a lot of information with a very few or no words, है ना. कार्टून जैसे ड्रॉ करके रखते हैं, उसके थ्रू कार्टून्स ऑल्सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना. दीज आर कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल नहीं, बोल के नहीं, नॉन वर्बल. समझ में आया. फिर रिटन कम्युनिकेशन हुआ. रिटन तो कम्युनिकेशन आपको समझ में आता है, लिख के जो, ठीक है. फिर आप देखो वर्टिकल कम्युनिकेशन. अब वर्टिकल कम्युनिकेशन में टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन. वन इज अपवर्ड, अनदर इज डाउनवर्ड. ओके. वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप, बॉटम टू टॉप. ठीक है. अगर वो अपवर्ड है तो वो नीचे से ऊपर जाएगा. जैसे नीचे कोई भी जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कोई इंफॉर्मेशन पास करना है, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, किसको, मतलब अपवर्ड में जो है, जैसे मिडिल में एक अपवर्ड एकदम टॉप में रहता है, एक मिडिल में और एक लोअर लेवल में. ठीक है. तो लोअर लेवल से अगर अपवर्ड लेवल में जाना है तो लोअर लेवल से फिर मिडिल में जाएगा, फिर मिडिल से अपवर्ड जाएगा. दिस इज कॉल्ड अपवर्ड. ओके. इट्स अ काइंड ऑफ हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉराइजॉन्टल समझ में आया. ऐसा आता है, नहीं तो ऐसा जाता है. ठीक है. अपवर्ड अगर आएगा तो ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ. ओके. डाउनवर्ड जब ऊपर से नीचे की तरफ. अभी बॉस को कुछ पास करना है तो बॉस को क्या करेगा, जो जैसे वाइस प्रेसिडेंट है एक कंपनी का, हाँ, एक कंपनी का सीईओ है, तो वो अपने हेड एचओडी को बोलेगा, एचओडी जाके मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर जाके क्लर्क को बोलेगा, ऐसे करके पास होता है. ठीक है. समझ में आया क्या. हॉराइजॉन्टल. ओके. ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड. फिर ये हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन. ये हॉराइजॉन्टल नहीं, बाप रे, वर्टिकल कम्युनिकेशन. ठीक है. वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. वर्टिकल कम्युनिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, another one is downward communication. ठीक है. and horizontal is from left to right. ठीक है. horizontal is from लेफ्ट टू राइट. और हॉराइजॉन्टल को आप क्या बोलते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. जैसे मैंने वो सिंगल स्ट्रैंड वाला बोला था ना, इधर से गया ना, वो सिंगल स्ट्रैंड वाला को ही बोलते हैं हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन और लेटरल कम्युनिकेशन. ठीक है. इज इट क्लियर. जैसे मेरा एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, मैं मैनेजर हूँ. ठीक है. फिर तुम हो गए मटेरियल्स का मैनेजर. तो प्रोडक्शन का मैनेजर सेम लेवल में जा रहा है. ठीक है. डिपार्टमेंट अलग है लेकिन लेवल एक है. मैंने प्रोडक्शन का मैनेजर जाके मटेरियल्स का मैनेजर को इंफॉर्मेशन पास किया. मटेरियल्स का मैनेजर जाके जैसे ट्रांसपोर्ट का मैनेजर से इंफॉर्मेशन पास किया. ट्रांसपोर्ट का मैनेजर जाके गैस का मैनेजर मतलब से पास किया इंफॉर्मेशन. सो दिस इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके. सेम लेवल. ठीक है. हॉराइजॉन्टली. समझ में आ गया. देन डायगोनल कम्युनिकेशन. अब डायगोनल कम्युनिकेशन ऐसा आता है. ठीक है. जैसे मैं हूं लोअर लेवल में, मैं हूं क्लर्क को पास करना है इंफॉर्मेशन, ऐसे नहीं जाएगा. वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का हेड को जाके पास नहीं करना है, उसको जाके पास करना है कहाँ पे, क्लर्क. जैसे मैं हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्लर्क हूं, तो मुझे इंफॉर्मेशन पास करना है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हेड को, एचओडी को.
तो ऐसे गया ना वो, समझे तुम, इस तरह से गया ना। यहां पे है क्या, प्रोडक्शन का क्लर्क है, ठीक है, और वो जाके प्रोडक्शन का नहीं, ट्रांसपोर्ट का हेड को पास किया इंफॉर्मेशन। सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल। समझ में आ गया? ये वाला शंख हो गया, ये वाला कुछ नहीं है। बाकी ये सब इतना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ जो लास्ट क्वेश्चंस है, यू जस्ट टेक आउट द क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। हाँ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, communication that originates at a lower level and flows to a higher level is called, क्या होगा बोलो? Upward. Very good. Communication among employees at the same level in the organizational structure is called, very good, lateral. Which of the following should be, इस lateral को फिर क्या बोला जाता है? Yes. समझ में आया अभी? और ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है, यहां पे देखो एक ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, समझ में आया? ग्रेप वाइन लिखा है या नहीं? हाँ, ग्रेप वाइन का मतलब है जो गॉसिप होता है ना, जो फ्रेंड्स के बीच में, कॉलीग्स के बीच में जो इनफॉर्मल होता है गॉसिप, दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन द ग्रुप डिस्कशन? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप इनिशिएटिव, false statements, confidence. क्या? Yes, very good. Which business communication usage provides a bird eye view on a matter? Bird eye view. Yes, presentation. How many types of communication takes place in an organization? 5. Okay? 5 mean 5. ठीक है? In which business communication a speaker has to clearly speak for or against a topic? Yes, debate. Very good. Includes face-to-face interaction with customers for closing the sale. Face-to-face communication होगा customer के साथ sale को close करने के लिए. क्या होगा? Personal selling. Very good. Use of coupons and samples come under which mode of marketing communication? Sales promotion. Very good. What is the situation called when a bad image of the company is created? Negative PR. PR का मतलब क्या है? Public relation. ठीक है, तो negative PR तो bad image होगा, और good image के लिए positive PR. Okay? Business communication helps in establishing dash when marketing. Yes, professionalism. Participants involved in the process of communication must be open minded. Judgmental नहीं होना है, judgmental नहीं होना है. Participants ना, participants को judgmental नहीं होना है, participants को हमेशा open mindedness होना है. Which of the following is not one of the 8 C's of communication? Curiousness, conciseness, considerate, concreteness. कौन सा नहीं है 8 C's में? हाँ? हाँ? Considerate तो था, considerable मैंने बोला था ना, considerable होना चाहिए. कौन सा नहीं था?
क्यूरियसनेस नहीं चाहिए, ठीक है, क्यूरियसनेस नहीं था, ओके ये तीनों ही था, कंसाइसनेस, कंसिडरेट, कंक्रीटनेस, तीनों था, ठीक है ये लेकिन आएगा श्योर. नीड ऑफ प्रॉपर ग्रामर एंड सिंटैक्स comes under which C of communication? Huh? Correctness. Huh? If a message is short and to the point, मैंने बोला था, the message is said to be concise. Very good. The way the information is described or translated into a message and put in verbal or non-verbal medium is called, huh? Very good, encoding. Affirming comments with regard to future behavior. Yes, very good. Positive feed forward. एटिया जो अभी अगर यहाँ पे रहता कि corrective comments with regard to future behavior, तो क्या होता? Yes, negative feed forward. समझा? Affirming जो comments है, वो future के लिए positive feed forward. Affirming comments for the past behavior, उसको क्या होगा? Positive feedback, ठीक है? और corrective comments for the future behavior क्या होगा? Negative feed forward. और corrective comments for the past behavior negative. समझ में आ गया? Interpretation and conversion of information communicating into the intelligible form so that the recipient can fully understand the true meaning of the information is called, very good, decoding. What is the first step of communication process? Yes, idea develop करना, ठीक है? Method of delivering the message is known as method of deliver करना. Yes, channel, very good. Feedback is needed in which way communication? Two way, very good. Communication happens when a person randomly chooses some persons, हाँ, randomly जो choose करता है, to pass on the information which is a little interest but not important. Yes, probability chain. The communication starts when a person tells something to a group of people and then they pass on the information to some more people and in this way the information is passed on to everyone. Gossip chain, very good. Which of the following is not an advantage of formal communication? Which of the following is not an advantage? Advantage नहीं है, वो disadvantage है formal communication में. क्या है? नहीं, सिक्रेसी है, क्योंकि आपको वो हमेशा सिक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा, है ना? मतलब आप जो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, ऐसा होता है कुछ कुछ आप चीज़ आप अपने घर के साथ भी आप डिस्कस नहीं कर सकोगे. दैट वन इज़ अ फॉर्मल. कभी कभी ऐसा होता है ना दैट एकदम मतलब बोलने का मन कर रहा है कि घर के आदमी को किसी के साथ बहुत बड़ा सीक्रेट चीज़ है, बट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद दैट. यू हैव टू मेंटेन दैट सीक्रेसी. दिस इज कॉल्ड, ओके, समझ में आया? At what stage the communicator focuses on correcting the grammar, spellings and punctuation? Revising and editing, ठीक है? The study of body language of a person is called body language. Yes, kinesics. A cloud computing is availability of computer resources. Yes, on demand. The cost of incurred in interacting with customers via video call has been, the cost incurred in interacting with customers via video call has been reduced. तो अभी हुआ है, इस पे क्वेश्चन मार्क है. ये क्या होगा? इंक्रीज्ड. मतलब कॉस्ट जो इनकर्ड इन इंटरेक्टिंग कस्टमर्स वाया वीडियो कॉल हैज बीन इंक्रीज. वाई? मतलब ये क्यों ये हो रहा है ना? इसको तो नहीं होना चाहिए ना, रिड्यूस्ड हो. हाँ, क्वेश्चन मार्क है. प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस
to customers result in which of the following benefits of internet communication? Support care, ठीक है? Professional behavior includes behave in a workplace में, yes, positive. Business attire refers to, attire मतलब dress code, ठीक है? Clothing in a professional conduct, ठीक है? It is to interrupt people while they are speaking. Yes. At the end of the day, who needs to be satisfied? Suppliers. Suppliers or customers, दोनों ही होना चाहिए. Writing is dash in nature. Personal. Which of the following skills is the most important for professionals like editors? Writing skills. Editor, edit करना है ना, तो उसको written skill अगर नहीं होगा तो नहीं कर सकेगा. Presenting skill अगर written part ठीक रहेगा तभी वो present कर सकेगा, है ना? In which type of letter buyers want to know the price and quality of the goods they are willing to buy and query? ठीक है? How many reports are there on the basis of legality? 2. Okay. A stage wherein members have spotted the differences in their cultures and they look upon these differences as negatives is called none of the above. Okay. Mr. A and Mr. B belong to two distinct cultural backgrounds. दोनों का culture अलग-अलग है. Mr. B believes that his culture is superior. उसका culture ज़्यादा superior है compared to the culture of Mr. A. This phenomenon is known as ethnocentrism. ठीक है? Dash stage at which members learn to accept each other's culture. However, they still remain devoted to their own respective cultures. वो है adoption. Recognizing the different types of cultures, the similarities and differences between them without being judgmental. उसमें आपको judgmental नहीं होके करना है तो क्या होगा? Cultural sensitivity. Okay? Judgmental नहीं होके, ठीक है? Which of the following is not an example of physical communication barrier? Physical communication, language, ठीक है? जैसे फिजिकल टेलीफोनिक डिस्टर्बेंसेस, डिस्टेंस, बैकग्राउंड नॉइजेस, ये सब फिजिकल हो जाता है. लैंग्वेज एक ऐसा है जो फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है? एक्सेसिव यूसेज ऑफ टेक्निकल jargons and double meaning words are what type of barrier? Semantic barriers. Okay? Information overload is when listener gets too much information. अच्छा, ये true false तो you will be able to reaching, filling the blanks, देखो तो reaching before or on time at meeting reflects before, पहले आ जाना, और on time at meeting reflects courtesy. Okay? Audience which are easy to deal are known as apathetic. When a particular trait of a person outweighs the other traits, it is called halo effect. ये आता है, ठीक है? Halo effect. Product disclaimer are a form of written or oral communication wherein the seller warns the buyers. ठीक है? ये तुम लोग ये कर लेना, ठीक है? इसमें, हाँ? So I have completed your law. कौन सा? Last one. ठीक है? For every chapter you just go through the questions. Okay? So thank you one and all. We have ended the course today. Thank you. And all my best wishes to you all for the exam.